جی ہم آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے جا رہے ہیں سلح موڈ کیا ہے، مریم نواز اور صنم جاوید کی کیا لڑائی چل رہی ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے اور غداری کے سرٹیفکیٹ کیا اور کیسے بانٹے جا رہے ہیں، آئیں دیکھیں۔ Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آپ لوگوں کے ساتھ جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ایک سرخ مرغے کی بات کرنی ہے، اسی طرح مریم نواز اور صنم جاوید کی بات کرنی ہے، اسی طرح ہمارے مستقبل کی بات کرنی ہے اور غداری کے سرٹیفکیٹس کی بات کرنی ہے۔ جی بالکل، یہ باتیں ہیں کیا؟ آپ لوگوں سے کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے کچھ باتیں اور بھی ڈسکس کرنی ہیں، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہے نا ہمارا مستقبل، اس کے اوپر ذرا فوکس کیجئے گا، غور کیجئے گا، یہ کیا چیز ہے، کوئی سوالات ہیں ان کا جواب دیجئے گا، لیکن ویڈیو پوری دیکھیے گا، اس میں اینڈ میں آپ لوگوں سے ساتھ بہت اہم سے سوالات ہیں۔ ہمارا فیوچر، ہمارے فیوچر سے کیا مراد ہے؟ میرا فیوچر، آپ کا فیوچر یا ہم سب کا فیوچر، یعنی ہمارا مستقبل، اس کے حوالے سے کیا بات ہے؟ چلیں تفصیل سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر لیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مریم نواز اور صنم جاوید کے حوالے سے۔ مریم نواز اور صنم جاوید، آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک دن پہلے بلکہ ایک تقریر کی، اور اس تقریر کے دوران انہوں نے بالکل سیدھا جو ہے وہ ججوں کو کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں تو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے نہ کریں، بلکہ انصاف کے مطابق فیصلے کریں، قانون کے مطابق فیصلے کریں، لا کے مطابق فیصلے کریں۔ یعنی ایک قسم کی بالکل سیدھا ٹھا والی جو ہے وہ جنگ سٹارٹ کر دی۔ اب اس جنگ کے حوالے سے بھی اور دوسری بھی دیکھیں، صنم جاوید کی ہم بات کرتے ہیں۔ مریم نواز کی یہ جنگ آگئی، صنم جاوید کو کامیابی یہ ملی ہے کہ 2-4 دن پہلے عدالت کی طرف سے ان کو رہائی نصیب ہو گئی۔ کتنے عرصے کے بعد؟ 1 سال سے کچھ ماہ زیادہ، یعنی تقریباً 1.25 سال کے بعد ان کو رہائی مل گئی۔ اچھا، اب جب یہ بات ہوئی، بات ہونے کے بعد دوبارہ سے مریم نواز صاحبہ نے ایک تقریر کی، جس تقریر کے دوران انہوں نے نام لیے بغیر یہ بات بولی کہ جب خواتین کو بالکل بغیر کسی جرم کے یعنی بے گناہ سزا ہوتی ہے تو میرا دل ٹوٹتا ہے۔ میں بھی عورت ہوں، مجھے بھی بے گناہ سزا ہوئی، لیکن جو عورتیں بالکل دہشت گردی کا پارٹ بنی ہوں، جو کہ اس طرح کے ایکٹیویٹی میں ملوث ہوں اور انہوں نے قید کاٹی ہو اور مثلا 1-2 سال سے وہ قید کے اندر رہی ہوں، تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے، وہ ایک بے گناہ نہیں بنتی۔ اس طرح کی بات جو ہے مریم نواز صاحبہ نے کی، اور یہ انہوں نے پھر ٹویٹ کے انداز میں بھی کی۔ اس کے اوپر اس کے جواب کے اندر صنم جاوید صاحبہ جو کہ ریسنٹلی رہا ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کی بہت سرگرم رکن جو تھی، اتنی زیادہ پہلے پاپولر نہیں تھی، لیکن جب یہ گرفتار ہوئی 9 مئی کے مقدمات کے بعد تو اس سے بعد ان کو ہائپ ملا اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آنکھوں کا تارا بنی رہی پی ٹی آئی کی۔ یہاں تک کہ مریم نواز کے مقابلے کے اندر جب کسی کو لایا جاتا جو کہ چیف منسٹر آف پاکستان ہے اس وقت، تو کہا یہ جاتا کہ صنم جاوید صاحبہ کو ٹکٹ دی جائے گی، ان کو لڑایا جائے گا، لیکن وہ ہیڈ نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن وہ ابھی بھی اپنے آپ کو مریم نواز صاحبہ کے کمپیٹیٹر کے طور کے اوپر دیکھتے ہوئے ان سے بات کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ دیکھیں یہ ایک عجیب چیز ہوئی نا، جو ججوں کے نام بھی لے، جنرلوں کے نام بھی لے، میرا نام نہ لے سکے، یعنی یہ ان کا تھا۔ اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں ڈیل کر کے باہر نہیں آئی، میرا ایک دفعہ نام لیں۔ پھر دی بلو دی بیلٹ انہوں نے جو ہے وہ فکریں کسنے شروع کی اپنی ٹویٹ میں، اور یہ کہا کہ میں تجھے بتاؤں گی کہ تو کس کس کے منتے ترلے کر کے کیا کر کے جو ہے وہ باہر آئی تھی، یعنی یہ بات کی صنم جاوید نے۔ اسی کا پھر جواب دیتے ہوئے جو ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پھر انہیں تھوڑا سا اس میں
कि तुम होती कौन हो वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने जवाब दिया, लेकिन वो ट्वीटें हमारा मकसद आपके साथ शेयर करना नहीं, हमारा सिर्फ मकसद शेयर करना ये है कि जो कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है मरियम नवाज साहिबा, और इसी तरह जो कि एक प्रपोज उनके कह लें कि कंपेटिटर थी मरियम नवाज साहिबा की, ये आमने सामने तो आ गई हैं, लेकिन आमने सामने आते हुए एक ये जो दरमियान में अखलाकी लाइन क्रॉस हो जाती है ना, इसकी हमें समझ नहीं आती। ये जो पौध है ना अखलाकी लाइनें क्रॉस करने वाली, ये खतरनाक चीजें हैं, और इसी ने ही हमारा दिल तोड़ा, हमारा दिल बनाया, या बहुत सारे लोगों को हाइप। देखें हुआ क्या, असल में ये है कि ऐसी लैंग्वेज जो है वो पीटीआई में ज़द-ए-आम है, और दूसरा ये है ऐसी लैंग्वेज को वो स्पेस भी देते हैं, पसंद भी करते हैं। जब ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है तो वो उसको और ज़्यादा वायरल भी करते हैं, और वायरल हो भी जाती है। वायरल होने के बाद ठीक इसी तरह पिछले 2-3 दिन की अगर आप खबरें उठाकर देखें ना, जैसे वो फैज़ाबाद धरने के हवाले से, इस्लामाबाद में एमरजेंसी मार्शल लॉ के हवाले से, इसी तरह जजों की तकर्री के हवाले से, जजों अडहाक जजों की तकर्री के हवाले से वो बात करें, या इसी तरह मिलती जुलती सारी बातें इकट्ठी करके जिसमें पीटीआई का जो है एक होल्ड है उनकी बात करें, इन सारी चीज़ों पे हम डरते रहे किस तरह से बात करें, कैसे बात करें, क्योंकि ट्रोलिंग किसी वक्त भी स्टार्ट हो जाती है, किसी की भी हो सकती है, कुछ पता नहीं चलता। आप कह रहे होंगे तेरे तो व्यूवर्स ही नहीं हैं, वो थोड़े व्यूवर हैं, किसने ट्रोलिंग करनी है। यार ये ऐसी चीज है, घर से भी नहीं कोई बहसता, अपने रिश्तेदारों से कोई नहीं बहसता, अपने खानदान वालों से कोई नहीं बहसता, अपने फैमिली फ्रेंड से कोई नहीं बहसता, अपने क्लोज सर्कल से कोई नहीं बख्शता। इसमें यहाँ तक कि बाप बेटा आपस में एक दूसरे के सामने आए होते हैं। ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसी चीज का हवाला हमें स्क्रूटनी नहीं कर पाए, खबर को किस तरह से आपके सामने रखें, कैसे पेश करें, इसीलिए माजरत तो ये कि थोड़ा सा लेट आए आपके सामने। लेकिन बात करते हैं सुरह मुरक की, बात करते हैं सुरह मुरक की। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, बात करते हैं सुरह मुरक की। लेकिन उससे पहले हम दो और बातें डिस्कस कर लेते हैं। गद्दारी के सर्टिफिकेट्स की हमने बात की, आपने देखा अभी पूरी कंपेन चल रही है, जिन कंपेन के हवाले से बाकायदा इश्तेहारात लगे हुए हैं, बाकायदा पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, उसमें डिफरेंट लोगों की तस्वीरें लगाकर गद्दारे वतन, गद्दारे मुल्क, ये चीज़ें लिखी गई हैं। ये किस चीज़ का शासाना है? इसी चीज़ का शासाना है। या तो उनमें से कुछ इन्फ्लुएंसर थे, या उनमें से कुछ यूट्यूबर थे, कुछ उनमें से सहाफ़ी थे, कुछ उनमें से जो है वो तजिया नगार थे, यानी बहुत सारे उनकी तस्वीरें लगी हैं, कोई सियासतदान थे। कहने का मकसद ये है कि एंड रिजल्ट क्या, ये सारी जो है वो चीज़ों का हमें गद्दारी की तरफ लेके जा रहा होता है, या गद्दारी की तरफ नहीं लेके जा रहा होता तो सो कॉल्ड गद्दारी सर्टिफिकेट्स की तरफ लेके जा रहा होता है। इन चीज़ों के बारे में हमें सोचना है, और बहुत ही ज़्यादा सोचना है। फिर भी सुर्ख मुर्ग से पहले आप लोगों से हम बात करते हैं हमारे मुस्तकबिल के हवाले से। आपने मेरी अभी की बात से पहले वाला पोर्शन आपने देखा, किस तरह से हमें बहुत एनर्जेटिक रह के, बहुत जोर लगा के आप लोगों के सामने कोई भी खबर स्टांस पेश करना पड़ता है। लेकिन ये जो अब हम बात करने जा रहा हूँ, हमारा मुस्तकबिल में हमने सोचा कि हम अपने चैनल को किस तरह लेके जाएं। पहले भी जब चैनल बनाया तब भी सोचा, अभी भी सोचा, बैठ के ये जो 2 दिन फिर गैप रह गया, नहीं हम कंटेंट आप लोगों के सामने पेश कर सके, उसमें भी सोचा कि हम कैसे आप लोगों के सामने जो है मुस्तकबिल में आप लोगों के साथ अटैचमेंट में रहें, क्या बात करें आप लोगों के साथ। उसमें जो मुझे समझ आई है, उसमें 2 चीज़ें मुझे समझ आई हैं, आप लोग इस बारे में मुझे गाइड कीजिएगा। पहली चीज़, बड़े ही अरसे से हम सियासत को लेकर चल रहे थे, सियासी न्यूज़ को लेकर चल रहे थे। हमने कहा कि चलें ये ख़त्म कर देंगे 8 फरवरी तक, लेकिन व्यूवर्स ने देखना चाहा, उसको हम ख़त्म नहीं कर सके। आते आते हमने कहा चलें बजट तक ख़त्म कर देंगे, फिर बजट तक ख़त्म नहीं कर सके। यानी ये डेली की बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई चीज़ें ऐड होती हैं फिर, लेकिन इनमें कुछ चीज़ें, कुछ खबरें, कुछ तजिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्लो द बेल्ट चली जाती हैं, या ब्लो द बेल्ट नहीं भी जाती तो ऐसी होती हैं कि बिल्कुल नाउमीदी फैला रही होती हैं, नेगेटिविटी होती है,
या नेगेटिविटी के अलावा इतना डिस्करेजिंग पॉइंट होता है महंगाई मिसाल के तौर के ऊपर, तो फिर हम सोचते हैं कि किस तरह ये बात डिलीवर करें। ये डिलीवर करना बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, हम नहीं कर सकेंगे। तो इसका हमने फिर ये सोचा कि ऐसा करते हैं, आप लोगों के सामने जहाँ ये चीज़ तो डिस्कस करते हैं, हम इसके साथ साथ इसको कन्वर्ट करते हैं हालाते हाजरा के ऊपर और साथ में कुछ मुआशरती बेगार और उनके हल के ऊपर कुछ इस तरफ लेके जाते हैं। और इस हवाले से आप लोगों के सामने लोगों की मिसालें पेश करेंगे, यानी लोगों की कहानियाँ, रियल स्टोरीज पेश करेंगे, जिससे होगा क्या, होगा ये कि आप लोगों को भी हौसला मिलेगा और हमें भी हौसला मिलेगा कि व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और आप लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ेगी। असल चीज़ तो ये है ना कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोगों की दिलचस्पी ना बढ़े तो ये हमारे लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। जी, हम बात कर रहे थे सुरह-मुर्ग की। सुरह-मुर्ग भी उसी ही एक जो माशरती बेगार है और फिर उस माशरती बेगार का हल है, उसकी एक सिंबॉलिकल डेफिनेशन है या सिंबॉलिकल टर्म है या आप कह लें सिंबॉलिकल कोड वर्ड है। ये सुरह-मुर्ग ये है क्या? मेरा ख्याल है पहले हमने जितनी बातें सियासी कर ली इसके हवाले से आप लोग शायद इसमें इतनी दिलचस्पी ना लें, लेकिन मुझे दिलचस्पी चाहिए। उसके लिए फिर दूसरा हाल जो मेरे सामने नजर आया था ना, वो ये आया था कि चलें हम डेली के 2 व्लॉग मसलन कर लिया करें। एक व्लॉग के अंदर हमारा ये होगा कि माशरती बेगार के हवाले से रियल कहानी, स्टोरी और उसका हल, और दूसरा ये होगा कि हम आप लोगों के साथ वही सिनेरियो जो हमारा चलता आ रहा है कि हम सियासत में से अहम खबर जो कि आपके लिए भी अच्छी हो सकती है, मज़े की हो सकती है, आप लोगों के फ़ायदे की हो सकती है, उसको अपने चुनाव का हिस्सा बनाएं। तो मेरा ख्याल है हम इस तरह की 2 बना लेते हैं, या दोनों में ही दोनों का मिक्सचर हो। ये आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसको किस तरह से देखना चाहते हैं। लेकिन आज के लिए ऐसा है, अभी तो हमने ये बात कर दी। दूसरी जो है हमारा माशरती बेगार और उसके हल वाला, जिसका हमारा टाइटल है सुरह-मुर्ग, इसको नेक्स्ट वीडियो तक पेंडिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, उसके अंदर ये सारा आपको बताते हैं कि सुरह-मुर्ग क्या है और ये क्या टर्म है और कौन से माशरती बेगार का ये हल है और इसका हल किस तरह है और क्या होता है। आइए देखते हैं। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि नए हैं, और वीडियो पसंद आया करें ना, चलिए कोई टोटा भी पसंद आ जाए, वीडियो का कोई हिस्सा पसंद आ जाए, कोई पोर्शन पसंद आ जाए, उतना ही काट के शेयर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सा ख्याल रखिएगा, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।